This is Professor Abid Munir from Punjab College, Multan. Today's topic is history of English literature, and especially I'm going to cover Anglo-Saxon period. You know that literature is the reflection of society, and you cannot appreciate literature until and unless you understand the history of a particular era. For example, if you want to appreciate Chaucer, and if you want to really understand the literature of the period of the Chaucer, you have to understand the society and the history of that era. Then we can be able to understand the true literature. Today I am going to talk about Anglo-Saxon period. Why I am starting from Anglo-Saxon period? Because Anglo-Saxons were basically the founder of English literature. The first English literature came into the world in form of oral or in form of written. That was during the period of Anglo-Saxon period. In order to understand Anglo-Saxon period, we have to take some historical references, because with the people who were there at that time, they know better than us. We don't know because we don't know the history of English literature, because at that time we were not there. But the people who were there and who wrote about the history of English literature, especially Anglo-Saxon period. So I am going to add some references. You can write them down. And whatever, I will only discuss the main points of Anglo-Saxon period, the main points which are very helpful for PPSC English lectureship exam. According to Bede, Bede, in his book Ecclesiastical History of the English People, Teutonic peoples, who were Teutonic peoples, they were basically Germany, which are called Anglo-Saxons before they appeared in Britain. Before they appeared in England, before they ruled Britain, came from three very powerful nations. They came from three very powerful nations of the Germans. That is from the Saxons, Angli and the Jutae. I am pronouncing these words in the background of history. When these words came into the world, so जो है, Saxons came from the Low Country south of Denmark. अब मैं इन तीनों को डिफ़ाइन करूँ, ये तीनों कहाँ से आए, फिर ये इकट्ठे कैसे हुए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सैक्सन जो थे, ये लो कंट्री साउथ ऑफ डेनमार्क से आए थे और ईस्ट ऑफ हॉलैंड से आए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि डेनमार्क, हॉलैंड, स्वीडन, वहाँ से ये लोग इकट्ठे आए और इन्होंने इंग्लैंड को आकर आबाद किया। द मॉडर्न होलेस्टियन कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं। द एंगल्स जो है, ये कहाँ से आए थे? The Angles appear to have lived in modern Jutland, while Jurs came, जो जट थे, तीन हो गए ना जी, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जर्स। ये बेसिकली तीन ट्राइब्स थे जिन्होंने आके जो है ब्रिटिश हिस्ट्री को बदला, या जिन्होंने आके जो है ब्रिटेन में रूल किया। तो ये बेसिकली वॉरियर्स थे, बारबेरियंस थे। उस वक्त इनके अंदर क्रिश्चियनिटी मज़हब भी नहीं था, बाद में इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट किया। तो जो जर्स थे, ये कहाँ से आते? वाइल जर्स केम फ्रॉम द कंट्री ईस्ट ऑफ द लोअर रीन जटलैंड। रीन इसका नाम था जी, जटलैंड जिसे हम कहते हैं। इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड देयर वर सैक्सन्स किंगडम्स इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट। एंजेलिकन किंगडम कहाँ थी? ये ईस्ट और नॉर्थ और मिडलैंड में थी। और द जूटिश जो थी किंगडम, वो कैंट में थी। कैंट आपको पता है कि यूके में है जी, यूनाइटेड किंगडम, इन द साउथ ईस्ट। There were minor differences in them in Angles, Saxons and Jurs. There were minor differences on the basis of culture and dialect. Romans were living in Britain before Anglo-Saxons invaded. जब Anglo-Saxons आए तो ब्रिटेन में कौन रह रहा था? वो रोमन्स रह रहे थे। इन्होंने आके जो एज अ वॉरियर रोमन्स पर हमला किया। तो रोमन्स और सेल्टिक, जो सेल्टिक थे, ये वेल्स कंट्री ऑफ यूके से और कॉर्नवाल से ताल्लुक़ रखते थे। तो पीपल हैड टू विदड्रॉ फ्रॉम इंग्लैंड। ये जो रोमन्स थे या ये जो सेल्टिक लोग थे, इन लोगों को अपने आप को इंग्लैंड से विदड्रॉ करना पड़ा,
ड्यू टू द अटैक ऑफ एंग्लो सैक्सन्स इन इंग्लैंड। और ये इन्होंने विदड्रा कब शुरू किया, ये 410 AD में। तो ये डेट्स भी आपने याद रखनी है, ये बैकग्राउंड आपने याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं जो इंग्लिश डायलैक्ट थी, जो उस वक्त इंग्लिश बोली जाती थी, उनके लिटरेचर में या जो थी वो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से मेन फीचर्स थे। तो देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द डायलैक्ट ऑफ द वेस्ट सेक्शन ऑफ द साउथ एंड द एंजेलिकन डायलैक्ट ऑफ नॉर्थ अम्ब्रिया। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ इनको डिफ़ाइन करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप इंटरनेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं इन टर्म्स को डिफ़ाइन करने में। द वर्स, वो जो वर्स थी, वो जो पोइटिक वर्स थी, वो एलिट्रेटिव थी। एलिट्रेटिव आपको पता है एलिट्रेशन से निकला है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स होती हैं, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड्स कॉन्सोनेंट्स। एलिट्रेटिव बहुत ज़्यादा थी और वो स्ट्रेस्ड थी, विदाउट राइम, राइमिंग स्कीम नहीं थी, यानी कि एट द एंड जो साउंड थी वो मैच नहीं करती थी। ईच लाइन कंटेनिंग 4 स्ट्रेस सिलेबल्स, हर लाइन के अंदर 4 सिलेबल्स स्ट्रेस होते थे एंड अ वेरिंग नंबर अनस्ट्रेस्ड। बाकी जितना भी था वो अनस्ट्रेस होता था, लेकिन 4 सिलेबल्स स्ट्रेस होते थे। तो देर इज़ डेफिनेट पॉज, और दरमियान में इन द मिडल ऑफ द लाइन देर वाज अ पॉज, और पॉज को ज़माने में सेसुरा कहते थे, बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ ईच लाइन, यानी कि देर वाज अ पॉज बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ ईच लाइन विद 2 स्ट्रेसेस इन ईच हाफ। सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन्स पोइट्री इज़ द हीरोइक पोइट्री। जो पोइट्री हम तक मिलती है उस ज़माने की जी, वो हीरोइक पोइट्री है। आपको पता है हीरोइक डीड्स होंगे और उसमें एपिक अंदाज लिखा जाएगा, जैसे कि आपने पढ़ा बेओवुल्फ वाज द ओनली बुक विच वी हैव स्पेशली इन द म्यूज़ियम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ जो मेन करैक्टर था इस मिडल इंग्लिश रोमांस का। रोमांस में हीरोइक डीड्स डिस्कस करते हैं, ये एक दफ़ा MCQ में आया हुआ है, ख़ास तौर पे जो लेक्चरशिप के MCQs थे, कि जो मिडल इंग्लिश हमारे पास आती है, इसको मिडल इंग्लिश, तो जो हमारी एंग्लो सेक्शन है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाता है। मिडल इंग्लिश पीरियड तो आ जाता है हमारे पास चौसर का ज़माना। बहरहाल मेन करैक्टर उनमें जो था वो आर्थर था। आर्थर वाज एन इम्पोर्टेंट करैक्टर ऑफ दिस पीरियड, इट वाज एन इंग्लिश मैन। एक बंदा था जिसका नाम था जॉफ्री ऑफ मोनमाउथ। ये वो जॉफ्री चौसर नहीं है, ये जॉफ्री ऑफ मोनमाउथ है, हु फर्स्ट एलोबोरेटेड द आर्थोरियन स्टोरी। आर्थर को उसने डिफ़ाइन किया इन हिज बुक हिस्टोरिया रेगन ब्रिटेने एंग्लो सैक्सन्स। अब इसके बाद जो मैं बात आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, वो है एंग्लो सैक्सन्स ने जब क्रिश्चियनिटी मज़हब को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद क्या चेंजेस आई लिटरेचर में। जज़ाकल्लाह।